In today's lecture, we are going to discuss atomic spectrum. Atomic spectrum में पहले हम लोग को समझेंगे कि how we can find out number of spectral lines, and then we'll see उस spectral line का wavelength या frequency कैसे find out करेंगे, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो सब चीजें भी हम लोग समझेंगे. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's say we'll start atomic spectrum. Now, before we start atomic spectrum, first we can just try to understand the meaning of spectrum itself. Spectrum. So the meaning of spectrum is, let's say, if electromagnetic radiation of different type of frequency is passed through, let's say, prism, it can be divided into different frequency bands. It can be divided into different frequency bands known as spectrum. So my point is, if electromagnetic radiation, which consists different type of frequencies, is passed through prism, it can be divided into different frequency bands known as spectrum. Yes, थोड़ा सा हम लोग ये ठीक कर सकते हैं भाई, इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेना तुम लोग. It is bands. Different frequency bands known as atomic spectrum. Now, two different type of spectrums can be there. Two different type of spectrum. Let's say one may be continuous spectrum, and similarly discontinuous spectrum. One by one we'll try to understand also कि continuous spectrum का meaning क्या है and discontinuous spectrum का meaning क्या है ना? But here two different type of spectrums can be there: continuous spectrum and discontinuous spectrum. Yes, have you noted down this? Yes, sir. Sir. 1 minute. Done, sir.
we'll see the meaning of continuous and discontinuous spectrum. So let's say the meaning of continuous spectrum. So the meaning of continuous spectrum means you can just try to understand. Suppose this may be any of the white light in continuous spectrum. Suppose this may be any of the white light. White light is, let's say, the normal light. So when this white light is passed through certain prism, we know it can be divided into 7 different frequency band, started from violet, blue, started indigo, blue, and then it may be, let's say, somewhere green, then it may be, let's say, yellow, it is orange and red. भाई मेरे पास बहुत सारे कलर्स नहीं है, इतने से काम चल जाए, है ना? So it started from, let's say, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, है ना? Vibgyor. So it is the example of continuous spectrum. The meaning of continuous spectrum is जहां से वायलेट वाला बैंड खत्म हुआ है, इंडिगो जस्ट वहीं से स्टार्टेड है, और जहां से इंडिगो एंड हुआ है, लेट्स से ब्लू वहां से स्टार्टेड है ना. So it is always continuous means there is all type of frequencies are available here, है ना? So it is the example of continuous spectrum. मतलब वायलेट से लेकर एंड तक सारे वेवलेंथ, सारे फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है. But same if you see the example of discontinuous spectrum, the meaning of discontinuous spectrum is, suppose this light, before it pass through prism, this pass through certain substance which absorb, let's say, yellow light, suppose, है ना? ये जो सब्सटेंस है वो सपोज इसका येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है ना? इट एब्जॉर्ब येलो लाइट. ये जो सब्सटेंस है वो सपोज येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना? तो वंस दिस रिमेनिंग लाइट इज पास थ्रू दिस प्रिज्म, ऑब्वियसली जहां वायलेट दिखने वाला था, ब्लू एंड इंडिगो दिखने वाला था, वहां अभी भी दिखेगा. जहां ग्रीन दिखने वाला था वहां अभी भी ग्रीन प्रेजेंट होने वाला है. ऑब्वियसली जहां येलो दिखने वाला था अब वहां इट विल बी ब्लैक ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, और जहां ऑरेंज एंड रेड दिखने वाला था वहां वापस से ऑरेंज एंड रेड दिखेगा. सो यू कैन से कॉरेस्पॉन्ड टू येलो, substance already absorb this yellow light, so there is no frequency band या color band correspond to yellow, है ना? So it is the example of, let's say, discontinuous spectrum, है ना? यहाँ correspondingly yellow में there is no frequency, no wavelength, है ना? As yellow is already absorbed. मुझे ब्लैक लाइट नहीं है. जब हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइज कर रहे होते हैं, इट इज ऑन ब्लैक फोटोग्राफिक फिल्म, है ना? तो ब्लैक फोटोग्राफिक फिल्म पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, एज ए ब्लैक ही दिखेगा बस, है ना?
अच्छा, ये जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इट इज आल्सो नोन एज लेट्स से लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इट इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। मुझे डेफिनेशन समझा है स्पेक्ट्रम का? मतलब मैंने तुम लोग को जो पीडीएफ भी शेयर किया था कलर्ड वाला, है ना, उसमें भी अच्छे से डायग्राम है कि कौन सा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कौन सा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना? So as per discontinuous spectrum is concerned, all frequencies or energy of the radiation is not available. वनु कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है यार। कंटिन्यूस मींस जिसमें सारे वेवलेंथ सारे फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, एंड डिसकंटिन्यूस मींस जिसमें कुछ कुछ बीच में मिसिंग है। तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? तो हर सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि भाई कोई एक फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर सकता है ना। जैसा इफ यू सी परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसलिए हम लोग को ब्लैक दिखता है। Yes, have you draw these structures? मानस, ये ब्लैक ना फोटोग्राफी फिल्म होती है जिसपे हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइज कर रहे होते हैं कलर्स। तो फोटोग्राफिक फिल्म का ही कलर ब्लैक है, और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो देखो ये ब्लैक में यहाँ से हटा देता हूं। लेट्स से ये यहाँ मिसिंग होने वाला है ना, यहाँ कुछ कोई कलर नहीं होने वाला है जहां मुझे दिखना चाहिए था येलो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना, जिसके लिए हम लोग ने स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझा। सर ये डिसकंटिन्यूअस फिर से बताओ ना। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मीनिंग था ना, लेट्स से जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसका मीनिंग है कि सपोज इस व्हाइट लाइट में से, जिसमें से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता था वायलेट से लेके रेड तक, बट सपोज अगर इसमें येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाए, अगर इसमें से येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया तो अब मेरे पास ये एक बैंड है और एक ये बैंड है, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच में गैप है ना। इन दिस केस ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस था, है ना। सर येलो ही क्यों एब्जॉर्ब होता है? अबे सपोज इस सब्सटेंस ने येलो को एब्जॉर्ब कर लिया था, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेता तो ग्रीन मिसिंग हो जाता है ना, ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लेता तो ऑरेंज मिसिंग हो जाता। सपोज इस सब्सटेंस ने येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। डन? Yes, sir. Okay, so let's say an atomic spectrum. The meaning of atomic spectrum is when electromagnetic radiation, let's say, comes from, you can say, bunch of excited atoms is passed through prism. When electromagnetic radiations come from bunch of excited atom is passed through prism, it can be divided into some, let's say, spectral lines.
Spectral line means you can say it is discontinuous spectrum. So some spectral lines, or you can say it is discontinuous spectrum known as atomic spectrum. So I'm repeating again, when electromagnetic radiations come from bunch of excited atom is passed through prism, it can be divided into some spectral lines. It can be divided into some spectral lines known as discontinuous spectrum, or let's say it is effectively atomic spectrum. पहले हम लोग डिटेल में समझ लेंगे कि बंच ऑफ एक्साइटेड एटम का मीनिंग क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस का मीनिंग क्या है. अच्छा, ये सब लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Sir. Just try to understand first what is the meaning of let's say bunch of excited atom or something like this, and how we can excite the atoms. उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है और समझना भी है ना. So just try to understand first. Suppose this may be any sealed container, and this sealed container consists, let's say, hydrogen gas. Now, as per hydrogen gas के number of atoms is concerned, even if you take 1 gram of hydrogen, the number of atoms will be in the range of 1 mole, which is Avogadro number. So here, suppose it is hydrogen gas के atoms, and as per number of atoms is concerned, they are huge number. Initially, electron may be present in their ground state, but on heating gas, depending on the quantum या amount of heat, electron can be excited from ground state to higher energy level. If electron get excited from higher energy या lower ground state से higher energy state, here you can assume, suppose ये nucleus था, and suppose initially electron जो ground state में था, अब सपोज वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गेट जंप अप टू, लेट्स से सपोज थर्ड ऑर्बिट, है ना. इफ इलेक्ट्रॉन गेट जंप अप टू थर्ड ऑर्बिट, डिपेंडिंग ऑन द हीट वी हैव सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन या एनी सब्सटेंस, एनी सिस्टम हैज टेंडेंसी टू रिटेन इट्स मिनिमम एनर्जी स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, है ना. It is something you can just try to imagine कि अगर मैं किसी स्टोन को अर्थ लेवल से ऊपर फेंक भी दूं, तो वापस स्टोन ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करता है ना. वापस it will try to decrease its energy. So once this electron get excited to third orbit, it will try to retain back to its ground state. ग्राउंड स्टेट तक आने के लिए इसके पास दो मेथड हैं. आइदर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम 3 to 1, और फर्स्ट इट कैन जंप फ्रॉम 3 to 2 and then 2 to 1. I'm repeating again. Once electron get excited up to third orbit, suppose, अच्छा, ये fourth orbit में भी जा सकता था, fifth orbit में भी जा सकता था, second orbit में भी जा सकता था, depending, let's say, heat we have supplied. But suppose electron get jump up to third orbit. जैसे थर्ड ऑर्बिट पे जाता, वापस ग्राउंड स्टेट पे आने की टेंडेंसी भी होती उसकी. तो दो तरीके से ग्राउंड स्टेट पे आ सकता था. आइदर 3 से डायरेक्टली 1 पे जंप कर जाए, या 3 से पहले 2 and then 2 to 1. सपोज 3 से 1 में it emit photon with energy equal to h nu 1. इस वाले केस में इट एमिट फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू h nu 2, और इस वाले केस में इट एमिट एनर्जी इक्वल टू, लेट्स से, h nu 3.
Now can you suggest me out of nu 1, nu 2 and nu 3, out of nu 1, nu 2 and nu 3 कौन सा frequency सबसे ज्यादा होगा? New one. No one. nu 1 it has maximum energy gap, then the nu 1 के बाद कौन सा होगा? New two. New two and new one. ध्यान से देखो, it should be nu 3 and then nu 2, New two. since फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है इट इज मोर देन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी गैप, है ना? If you remember in the last lecture we have seen as n increases the energy gap between orbits continuously decreases, है ना? So as per frequency nu 1 is concerned it will be more than nu 3, more than nu 2. Now if this electromagnetic radiation which comes from bunch of excited atoms, do you think in this case this electromagnetic radiation consists how many different type of frequency? इस एग्जाम्पल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज? Types of I hope frequency. three type of frequency containing frequency as nu 1, nu 2 and nu 3, है ना? So when it is passed through prism it can be divided into 3 discrete spectral lines correspond to frequency of nu 1, nu 3 and nu 2. अच्छा, ये हम लोगों ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में भी देखा इन द केस ऑफ विबगियोर, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा था उसका मैक्सिमम डेविएशन था. So as nu 1 is most, it has maximum deviation. So here in this example we are getting 3 spectral lines. In this case we are getting 3 spectral lines and the set of spectral line is known as atomic spectrum. Yes, ये लिखो सब, और कुछ डाउट है तो अभी डिस्कस करना है तुम लोगों को, है ना? प्रीतेश ऐसे परेशान नहीं करो ना लाइक. सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि भाई ये जो हाइड्रोजन एटम्स है पहले से अपने ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी स्टेट, but if you heat these atoms electron can be excited to higher energy level. Electron get excited to higher energy level. Suppose इस वाले केस में थर्ड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन चला गया था. Now when electron has tendency to return from third state to ground state, वो दो तरीके से आ सकता था इलेक्ट्रॉन, या तो सीधे 3 से 1 पे जंप कर जाए या 3 से 2 and 2 to 1 पे आ जाए. During these electronic transitions it can emit different type of electromagnetic radiation containing frequency nu 1, nu 2 and nu 3. So as per this electromagnetic radiation is concerned, this electromagnetic radiation which consists 3 different type of frequencies is passed through prism. जैसे प्रिज्म से पास करते तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स थे वो अलग अलग हो जाते हैं, और उसी को लेट्स से हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस बोल रहे हैं. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज किसी एक एटम में ये वाला ट्रांजिशन हो सकता था 3 to 1, और किसी दूसरे एटम में ये वाला ट्रांजिशन हो सकता था 3 से 2 and 2 से 1. Since we have too many atoms here, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की फेयर एनफ प्रोबेबिलिटी है ना? दोनों के दोनों ट्रांजिशन से 3 से 1 या 3 से 1 बाया 2 दोनों के होने का ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है ना? As we have too many atoms there. Yes, किसी बच्चों को डिस्कस करना है इसमें?
Sir, I have a doubt. हाँ पूछो ना, डाउट पूछो। Sir, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेटा बैंड स्पेक्ट्रम मींस सपोज, मतलब इंस्टेड ऑफ शार्प लाइन, सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा मिल रहा होता है ना, इंस्टेड ऑफ शार्प लाइन सपोज ऐसा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रहा होता, तो हम लोग बैंड बोल सकते थे उसको, है ना। ओके सर। हाँ कुछ और डाउट किसी बच्चे को? सर जो वो, अरे यार, हाँ बोलो। सर आप एक बार प्रीवियस पेज पे जा सकते हो? ये गंदा बच्चा, ये ऐसे डाउट थोड़ी होते हैं, ये वाला। नहीं सर, जिधर डेफिनेशन था। अच्छा वो डेफिनेशन, वो मैंने डिलीट कर दिया है ना बेटा, जो मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा उसमें देख लेना, है ना। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर जब वो 3 से जब 1 पे जाएगा तो वो कोई एनर्जी या फिर कोई रेडिएशन इमिट करेगा। यस। जब वो 3 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 1 जाएगा, फिर डबल रेडिएशन, मतलब बेटा ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब यू कैन से h nu1 should be equal to h nu2 plus h nu3, है ना। the energy difference will be same, है ना, total energy difference. Are you getting my point? यस यस। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। Okay, let's say first question based on this is, find out maximum number of spectral lines. You know, find out maximum number of spectral lines in atomic spectrum of bunch of excited atoms if electron is jump up to, let's say its A option is 4th orbit. A option is, let's say, fourth orbit. जैसे 3rd ऑर्बिट तक जब इलेक्ट्रॉन जंप हो गया था तो हम लोग ने समझा कि 3 स्पेक्ट्रल लाइंस थे। लेट्स से अगर 4th ऑर्बिट तक चला गया है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे वो बताना है ना। अच्छा आंसर 4 नहीं है ना। You have to find out maximum number of spectral lines in atomic spectrum of a bunch of excited atoms if electron is jump up to, नहीं बच्चे 3 भी आंसर नहीं है। ये कर सकते हो तुम लोग यार, कुछ बच्चे 8 नहीं, 8 भी आंसर नहीं है और 5 भी आंसर नहीं है। 6 यस, ये 6 किस बच्चे ने बताया मुझे आंसर? यस सर। क्योंकि अमन ने 6 बताया है और किसी बच्चे ने भी 6 मुझे बताया है शायद, है ना। अच्छा आंसर 6 है और 6 कैसे है थोड़ा आसानी से समझ भी सकते थे यार। ऐसा किसी एक एटम में ये ट्रांजिशन हो सकता था 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 to 1। किसी एक एटम में ऐसा ट्रांजिशन हो सकता था। इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग you will get 3 different type of frequency, है ना। Similarly, another electronic transition may be 4 से 3 and 3 से ये 1 आ जाए। This may be another new। अच्छा ये ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, सो हम लोग सिर्फ एक नया काउंट 1 ही करेंगे यहाँ से 3 to 1।
Similarly, this may be, let's say 4 से 2 and 2 to 1. 4 से 2 is new one and 2 to 1 already हम लोगों ने count कर लिया है, so it is another one. Same, another combination may be, let's say 4 से directly 1, ये अभी तक count नहीं किया था हम लोगों ने, so it is another one. So total let's say we can have 6 spectral lines, as total we have 6 different type of frequencies are there. In electronic transitions में 6 different type of frequencies है ना. 4 different type of frequencies, 6 different type of frequencies means 6 spectral lines. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? बेटा इलेक्ट्रॉन का 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जाने के लिए ये 4 मेथड हो सकते हैं. 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, या 4 से पहले 3 फिर 3 से 1, या 4 से पहले 2 and 2 से 1, या 4 से डायरेक्टली 1. और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना. अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में से 4 से 3, 3 से 2 and 2 से 1 में 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाते. एक 3 to 1 नया है, एक 4 to 2 नया है, और एक 4 to 1 नया है ना. सर 4 to 3 और 2 to 1 काउंट क्यों नहीं किया? 4 से 3 and 2 से 1, वो जो अपने येलो कलर में सर्कल किया है. बेटा 2 से 1 तो ऑलरेडी रिपीट हो गया था ना. 2 to 1 तो हम लोग ने यहाँ भी काउंट कर लिया था. तो हम लोग को रिपीट नहीं करना है ना. हम लोग को बस ये समझना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है ना. तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फिजिबल है. एक 4 से 3 आ सकता था, एक 3 से 2, एक 2 से 1, एक 3 से 1, एक 4 से 2 और एक 4 से 1. बस यही 6 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप के पॉसिबल है ना. अच्छा, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर. अच्छा ठीक है, समझ में आया. तो मुझे इसका बी पार्ट तुम लोग करके दिखाओ. इट्स बी पार्ट इज लेट्स से 5th ऑर्बिट. Fifth orbit. Suppose if electron get jump up to 5th orbit, so you have to find out maximum number of spectral lines here. नहीं बच्चे, आदित्य वो आंसर नहीं है. यस वरुण, तुम्हारा आंसर सही है. चिन्मय तुम्हारा आंसर गलत है. प्रथनव तुम्हारा आंसर गलत है. 10. यस हितांश तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे. उदय तुम्हारा आंसर सही है. या सिद्धि मालीवाल तुम्हारा आंसर सही था बेटा. प्रीतेश तुम्हारा आंसर गलत है. अक्षा पाठक तुम्हारा आंसर सही है. शुभम गलत है. ओके ठीक है, मतलब कुछ बच्चे मुझे सही आंसर दे पा रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर दे पा रहे हैं. मानस तुम्हारा भी सही है, एक बार मेरे साथ भी देखो तुम लोग, है ना. यस परीक्षित तुम्हारा सही है. एक बार देख लो बेटा सब बच्चे यहाँ कैसे हम लोग समझ सकते थे. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता था 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 and 2 to 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां में हो सकता था 5 से 3 and 3 से 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां हो सकता था लेट्स से 5 से 4, 4 से 2, 2 to 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां हो सकता था लेट्स से 5 से 4 and 4 से 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां हो सकता था 5 से सीधे ही 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां हो सकता था 5 से 2 and 2 to 1. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है 5 से 3, 3 से 2 and 2 to 1. And one more electronic transition can be possible. It is 5 से 3, 3 से, let's say 5 से 4
4 से 3 and 3 to 1। नहीं कृपा बेटा तुम्हारा आंसर गलत है, एक बार ध्यान से देखो है ना। आंसर 10 आएगा, और 10 कैसे आ सकता रहेगा हम लोग देखते हैं ना। बट 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट पे आने के लिए बस यही 8 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है ना। बस यही 8 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है। बस हम लोग को ये समझना है कि कितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। तो फर्स्ट वाले के कोरेस्पॉन्डिंग ही 4 आ जाते है ना। फर्स्ट वाले के कोरेस्पॉन्डिंग ही 4 आ जाते। 5 to 3 अभी तक काउंट नहीं किया है, 3 to 1 अभी तक काउंट नहीं किया है, सो अनदर 2। 5 to 4 हम लोग ने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 2 to 1 ऑलरेडी काउंट हम लोग ने कर लिया है, बट 4 to 2 अभी तक काउंट नहीं किया था, सो अनदर 1। 4 to 1 अभी तक काउंट नहीं किया है। अबे प्रथम नालायक, 4 कैसे हो गया? एक 5 से 4 वाला, एक 4 से 3, एक 3 से 2 और एक 2 to 1। 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गए उसमें। 4 to 1 में एक है, 5 to 1 भी अभी तक नया है, 5 to 2 भी अभी तक नया है। अच्छा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन शायद रिपीटेड है ना। इसमें से मुझे कुछ नया नहीं मिला और इसमें से भी मुझे कुछ नया नहीं मिला, बाकी सब रिपीट हो रहा है ना। सो total you will get 10 different electronic transitions if electron get jump up to 5th orbit। if electron get jump up to 5th, मैंने ऐसा फॉर्मूला लगाया n2 - n1 फिर n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर आ गया। यस बच्चे, कुछ ऐसा देखेंगे कहाँ से वो सब फार्मूला आया है ना, टेंशन नहीं लो। बट पहले ये वाला मेथड सीखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करने के लिए ये वाला मेथड भी मुझे यूज करना ही पड़ेगा, है ना। देखेंगे। मुझे लिखा है कि टोटल 10 कैसे आया। मैथ में काउंटिंग के लिए एक चैप्टर ही होता है पीएनसी, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब वो चैप्टर तुम लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे पीएनसी, ना, जब वो चैप्टर तुम लोग पीएनसी पढ़ लोगे तो हम लोग समझ भी लेंगे कि फार्मूला कैसे डिराइव होगा, है ना। तब हम लोग समझ भी लेंगे कि फार्मूला कैसे डिराइव होगा। बट अभी के लिए चाहो तो सीधे ही तुम लोग फार्मूला लिख सकते हो, है ना। क्या है फार्मूला? इट इज, लेट्स से, maximum number of spectral lines, maximum number of spectral lines from, let's say, bunch of excited atoms, from bunch of excited atoms if electron is jump up to, है ना, if electron is jump up to, let's say, in general हम लोग लिख लेते हैं nth orbit। in general, let's say, suppose it is nth orbit, yes, this is n times of n - 1 divided by 2। अच्छा बच्चे, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है बाद में हम लोग समझ लेंगे। इट इज इफेक्टिवली NC2 कॉम्बिनेशन, है ना, कुछ पढ़ेंगे ऐसा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट अभी के लिए तुम लोग सिर्फ ये फार्मूला याद रख सकते हो, है ना। अभी के लिए बस तुम ये फार्मूला याद रख सकते हो, n टाइम्स ऑफ n - 1 डिवाइड बाय 2। कैसे डेरिवेशन हुआ है अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। Now the next question is, let's say,
find out maximum number of spectral lines. Find out maximum number of spectral lines from, let's say, bunch of excited atoms if electron is allowed to have transition between, you can say, 9th orbit up to 3rd orbit only. सपोज अभी ग्राउंड स्टेट तक आना उसको अलाउ नहीं है, सपोज अभी ग्राउंड स्टेट तक आना उसको अलाउ नहीं है, इट इज ओनली अप टू थर्ड ऑर्बिट. चाहिए 33. यस, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, बट शायद किसी बच्चे का आंसर दिया मुझे सही नहीं आया है. अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, सही आया है. मुझे अंशुमन ने सही आंसर दिया है, मुझे मानस ने सही आंसर दिया है. यस, 2 बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है. अंशुमन, मानस, सुयस ने भी सही आंसर दिया है. देवकरण ने भी मुझे सही आंसर दिया है. अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे मुझे गलत आंसर भी दे रहे हैं. अच्छा ठीक है भाई, कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखो. यहाँ मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पता करने हैं 9 से लेकर 8, 8 से लेकर 7, 7 से लेकर 6 एंड सो ऑन अप टू ये 3rd तक आता है, वैसे ना, मतलब ग्राउंड स्टेट तक अभी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है. डू यू थिंक द सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मे बी if electron is allowed to jump 7 से 6, 6 से 5 and so on up to ground state? Obviously their photons के energy will be different, है ना, their photons के energy will be different, but as per possible number of transitions are concerned, जितने number of transitions 9 से लेके 3 में बनेंगे उतने ही number of transitions 7 से लेके 1 में बनेंगे, है ना.
तुम लोग चाहते तो इस फार्मूले को सीधा सीधा अप्लाई कर सकते थे, जस्ट टेक ए एनालॉजी की लेट से 7 से 1 पे आना था, तो 7 into 7 minus 1 divided by 2, और टोटल यहां से 21 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाते। रिपीटिंग अगेन बेटा, जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए 9 से 3 में बनेंगे, सेम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस विल बी पॉसिबल फॉर 7 to 1। Yes, sir. हम लोग एग्जैक्ट एनर्जी की बातें नहीं कर रहे हैं, एनर्जी ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, बट नंबर वाइज दे विल रिमेन सेम, है ना। और अगर थोड़ा सा और आसान करना है लाइफ को, तुम लोग और भी कर सकते थे, जैसा इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो क्या है, लेट्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम bunch of excited atoms if electron is allowed to have transition, if electron is allowed to have transition between, you can say, n2 to n1 orbit only, between n2 to n1 orbit only, कि कुछ ऐसा फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, n2 minus n1 plus 1 multiplied by n2 minus n1 divided by 2, or it may be delta n plus 1 multiplied by delta n divided by 2। जैसा इस वाले केस में अगर ये फार्मूला मुझे यूज करना होता तो इट विल बी 9 minus 3 plus 1 into 9 minus 3 whole divided by 2 and comes out to be 21। भाई अप्लाई कर लोगे ऐसा फार्मूला? Yes. अच्छा, ये सब तो कहानी हुई जब bunch of excited atoms and all this thing, और ऐसा फार्मूला लिख भी लिया तुम लोगों ने, है ना। Now, नहीं the सर, next, एक मिनट जी सर। okay, now the next question is, if energy is supplied to a hydrogen atom, if energy is supplied to a hydrogen atom and electron jump up to 5th orbit, if electron jump up to 5th orbit, find out maximum number of spectral lines in its atomic spectrum।
यस अक्षा पाठक तुम्हारा आंसर सही है। हरिप्रिया बेटा तुम्हारा आंसर गलत है। अमोघ तुम्हारा आंसर गलत है। ऐसे गलत मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इस चीज पे जरूर ध्यान देना तुम लोग, है ना। वरुण तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। अच्छा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस स्निग्धा तुम्हारा आंसर सही था। देखो वहां मैंने जो ए को अंडरलाइन किया है उस पर ध्यान देना, है ना। परीक्षित नालायक तुम्हारा आंसर तो पक्का गलत है। यस तनिशी तुम्हारा आंसर सही है। यस चिन्मय प्रथनव, अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझे सही आंसर ही दे रहे हैं। तो अच्छा पॉइंट इज, सिंस अभी तक हम लोग जो भी कुछ कर रहे थे इट इज फॉर बंच ऑफ एटम्स। यहां मेरे पास बस एक ही हाइड्रोजन एटम है। जैसे अगर थियोरेटिकली मेरे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है तो उसमें जो ट्रांजिशन हो सकता था मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन के लिए इट इज 5 to 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, है ना। मेरे पास बस यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। एक ही एटम है इसमें, है ना। एक ही एटम है मींस यहाँ एक, ये एक और मैक्सिमम आई कैन हैव 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे या फार्मूला लिख रहे थे इट इज फॉर बंच ऑफ एटम्स। यहाँ बंच ऑफ एटम्स नहीं है ना, यहाँ बस एक ही एटम है। एक ही एटम में तो कोई एक ही ट्रांजिशन हो सकता है बस। अंशुमन बेटा एक शेल नहीं होता है हाइड्रोजन में, और शेल्स का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट इज डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स depending on the energy of electron it can be present in any of the possible orbit. मुझे क्वेश्चन समझा है तुम लोगों ने, हाउ वी कैन हैव 4 स्पेक्ट्रल लाइंस? यस सर। ओके तो नेक्स्ट इज, सपोज इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। इफ एनर्जी सप्लाइड टू, let's say we have 2 hydrogen atoms and electron get jump up to 4th orbit, find out maximum and let's say minimum, find out maximum and minimum spectral lines in its atomic spectra. If electron get jump up to 4th orbit, नहीं द्रमिल तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे। वरुण तुम्हारा आंसर भी गलत है। हाँ हितांश मिनिमम का तुम्हारा आंसर सही है। यस यशोवर्धन रक्षित तुम्हारा आंसर सही था। अक्षा तुम्हारा आंसर गलत है बच्चे। कुछ कुछ बच्चे आंसर सही बता रहे हैं और कुछ गलत बता रहे हैं ना। नहीं देखो बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, बहुत कम बच्चे सही बता रहे हैं मुझे, है ना। ठीक है मैं करता हूं तुम लोगों के लिए और क्वेश्चंस करना है इस टाइप के। सो क्वेश्चन इज लेट्स से फॉर लेट्स से मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यू कैन इमेजिन मेरे पास 2 एटम है। किसी एक एटम में मैं ऐसा ट्रांजिशन कर दूं 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 to 1। किसी एक एटम में हम लोग ऐसा ट्रांजिशन कर सकते थे 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1। इसी में मेरे पास 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाते। और बाकी किसी दूसरे एटम में मैं कोई भी एक ट्रांजिशन कर सकता हूं। लेट्स से सपोज मैं 4 से 1 ही ले लेता हूं, इससे मुझे एक और नया मिल जाएगा एंड टोटल मेरे पास जो मैक्सिमम आ सकता था वो 4। सिमिलरली 4 मिनिमम
है ना। 4 मिनिमम, मैं फर्स्ट एटम में ट्रांजिशन ले लूं 4 से 1, और दूसरे एटम में भी सेम ही ले लूं मैं 4 से 1। अगर मैंने दोनों में ही 4 से 1 4 से 1 ले लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1, और क्योंकि ये रिपीट हो रहा था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ काउंट ना करूं तो यहाँ जो टोटल है वो आ जाता 1। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 ही एटम्स थे तो 2 एटम में मैक्सिमम के लिए मैं 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1 ले सकता हूं, तो उसमें ही 3 आ गए। और दूसरे एटम में मैं 4 से 1 ले लूं तो 4 आ जाता है ना। मिनिमम के लिए 4 से 1 4 से 1 दोनों में ही हो जाएगा, है ना। यस बच्चे, कुछ डाउट इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को? एक और क्वेश्चन। नो सर। हाँ, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन नहीं लो। बट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या है? यस। ओके। यस वत्सल, मैक्सिमम 4 से ज्यादा कैसे हो सकता है? सर अगर उधर हम 4 से 2 फिर 2 से 1 ले तो सेकंड वाले मैक्सिमम वाले में ही। हाँ, तो 2 to 1 तो ऑलरेडी काउंट हो गया है, तो बस एक नया 4 to 2 ही तो होगा, 4 to 2 उसमें ही तो आएगा। एक ही जुड़ेगा बस एक्स्ट्रा। अच्छा हाँ। बेटा मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशंस ले ले हैं, है ना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ डाउट्स रहेगा तो क्लास के एंड में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। सो let's say the next question is, if energy is supplied to bunch of hydrogen atoms and electron get jump up to 5th orbit, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे मैक्सिमम यहाँ बंच वाले केस में? 10 है ना, बंच वाले केस में 10 मिलते हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली 10 वाला नहीं है, अभी देखो। एंड इफ ऑल 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर observed in its atomic spectrum, all 10 spectral lines are observed in its atomic spectrum, find out minimum number of atoms present in bunch। मेरे पास मिनिमम कितने एटम्स उस बंच में प्रेजेंट होने चाहिए अगर मेरे पास 10 के 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होने हैं तो। नहीं भाई, अभी तक मुझे किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। अभी तक मुझे किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। यस, कुछ बच्चों का मुझे सही आंसर आना स्टार्ट हुआ। यस, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर मुझे आया। सो दिस आंसर इज 6। ये जो आंसर है वो लेट्स से 6 है। अच्छा, 6 कैसे हो सकता था? जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट्स से हम लोग यहां वापस आ सकते हैं। देखो, है ना, ये 10 के 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होने के लिए मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना जरूरी है, ये जरूरी है, ये और ये। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेरे पास नहीं भी हो रहे हैं तो भी मैं 10 काउंट कर सकता हूं, है ना। तो फॉर 10 स्पेक्ट्रल लाइंस
मिनिमम वी हैव टू हैव 6 एटम्स, है ना? मिनिमम वी हैव टू हैव 6 एटम्स। एक ये एटम, 2 3 4 5 एंड 6, है ना? So minimum we have to have 6 atoms. Yes, are you getting my point? Yes, sir. तो मेरे पास मिनिमम 6 होने चाहिए, है ना? अच्छा, अगर मेरे पास 5 एटम्स होते तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते? 9. वेरी गुड। और अगर मेरे पास 4 एटम होते तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते? 8। ज्यादा लोग कम कर सकते थे। वेरी गुड, है ना? इसके जैसा एक और क्वेश्चन, बेटा ये लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा 6 आंसर इसका? यस। Okay. Now next में suppose यही लोग वापस आते हैं। Energy supplied to bunch of hydrogen atoms, electron get jump up to 5th orbit। Suppose इलेक्ट्रॉन अगर 5th ऑर्बिट तक जंप कर गया था, then find out maximum possible ways in which electron can return to its ground state। यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है। आदित्य, तुम्हारा आंसर भी सही है। प्रथनव, तुम्हारा आंसर भी सही है। जयवल, तुम्हारा आंसर भी सही है भाई। अच्छा, अभी आंसर बताना थोड़ा सा आसान भी था। क्यों आसान था यार? ये हम लोग ने अभी तो देखा था। यहाँ ये है ना, हम लोग के पास 8 डिफरेंट मेथड्स थे, है ना? हम लोग के पास 8 डिफरेंट तरीके थे वापस आने के, है ना? मैं दिख रहा है 8 डिफरेंट वेज थे इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, है ना? तो उसका जो आंसर है, ये तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर उसका 8। बट सपोज क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 5th ऑर्बिट, सपोज अगर ये 6th ऑर्बिट होता, क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 5th ऑर्बिट, सपोज अगर ये 6th ऑर्बिट होता, तब आंसर क्या होता है? 15 नहीं, 9 से तो बहुत ज्यादा होगा। 13 नहीं। अच्छा, उसके लिए भी ऑब्वियसली मैथ में हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग। यस अथर्वा, तुम्हारा आंसर सही था। उसमें भी हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल तुम लोग चाहो तो फार्मूला याद कर सकते हो। सो द नंबर ऑफ वेज इज नथिंग बट 2 raised to the power n minus 2। Okay, number of ways is 2 raised to the power n minus 2। बेटा जब पीएनसी पढ़ लोगे तो फार्मूला भी आ जाएगा, है ना? मेडिकल वाले बच्चे सिर्फ फार्मूला याद करेंगे तो भी चलेगा, है ना? बाद में मैथ वाले बच्चे डिराइव कर लेंगे फार्मूला।
but number of ways is 2 raised to the power n minus 2. For example, if n का वैल्यू 5 था तो ये 8 नंबर ऑफ वेज आ जाते, n का वैल्यू अगर 6 है तो 16 नंबर ऑफ वेज आ जाए, है ना? So is it clear? Yes, sir. Okay. So till now at least हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब सीख लिया है ना? मोर ऑफ लेस ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग को करने के लिए भी मिलेंगे, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? नहीं सर. Okay. So next topic is, let's say, calculation. Calculation of lambda or frequency of, let's say, spectral line. Calculation of wavelength or frequency of spectral line. Yes, 2 का पावर n minus 2 था वो, है ना? Formula, last formula. Here you can just try to understand. Suppose it is nucleus जहाँ total positive charge plus Ze है, and in general you can just try to imagine ये n equal to, या you can say यहाँ suppose ये n1 ऑर्बिट है इन जनरल और ये n2 ऑर्बिट है इन जनरल, एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n2 to n1 ऑर्बिट. Electron move from n2 to n1 orbit. So it will emit electromagnetic radiation of energy equal to, let's say, h nu. And here this energy h nu should be nothing but En2 minus En1 आ जाता. Further, it may be hc/y lambda should be equal to 13.6 into z square times of 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square आ जाता. ऐसा लिख सकते हैं in terms of electron volt? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. Further, it may be written as 1 upon wavelength is nothing but, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, 2.16 into 10 to the power minus 18 divided by h divided by c times of z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया है बच्चे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो गया था? टेक्निकली जूल्स में, है ना? 13.6 and 2.16 into 10 to the power minus 18 जूल्स है. अच्छा, यही जो टर्म होता था, इफ यू रिमेम्बर, ये वेव नंबर था, है ना? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. Yes, sir. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कोई कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? h प्लैंक्स कांस्टेंट है और c स्पीड ऑफ लाइट वो भी कांस्टेंट ही है. Let's say this constant is known as RH. ये जो constant का नाम है, suppose RH है, so overall equation may be written as 1 upon wavelength is RH times of Z square and 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. इवन जो ये वाला टर्म है RH multiplied by Z square, this term is known as Rydberg's constant. So RH का मीनिंग हो जाता
Rydberg's constant for hydrogen RH का मीनिंग हो जाता है Rydberg constant for hydrogen. तो कैन यू सजेस्ट मी हीलियम प्लस के लिए Rydberg कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? +1 4 टाइम्स ऑफ RH है ना. और लिथियम 2 प्लस के लिए Rydberg कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता 9 टाइम्स ऑफ RH. Rydberg का जो स्पेलिंग है RYDBERG शायद यही है ना. एनीवे स्पेलिंग का टेंशन बिल्कुल ना लो है ना. RYDBERG Rydberg. So can we say हर एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अलग अलग रहने वाला है Rydberg कांस्टेंट का वैल्यू? हाइड्रोजन के लिए RH, हीलियम के लिए 4 टाइम्स ऑफ RH, लिथियम 2 प्लस के लिए 9 टाइम्स ऑफ RH. डन? yes sir नो सर. अच्छा ठीक है, लिखो आराम से लिखो. मैं ऊपर थोड़ा मिटाना स्टार्ट करता हूँ, शायद ऊपर वाला लिखा है तुमने. So as per this Rydberg constant का value is concerned, RH का जो वैल्यू है it comes out to be 109,677 तो पर 1.09 ही सेंटीमीटर है ना. लेते हैं. क्या? 1.09 ही लेते हैं फिर तो बहुत बड़ा है. हाँ मतलब ठीक है, हम लोग देख लेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे, या कई बार वैल्यू पुट करने की जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी. सिंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार सीधा RH या सिंपली कैपिटल R के टर्म्स में ही आंसर होगा है ना. So RH 109,677 per centimeter. अच्छा, डू यू थिंक ये पर मीटर हो सकता था 109,677 पर मीटर है ना. ऑब्वियसली पर मीटर 100 टाइम्स ज्यादा होगा पर सेंटीमीटर का है ना. कई बार हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए इसको 10⁵ ही लिख सकते हैं सीधे सीधे है ना. कई बार हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 10⁵ ही लिख सकते हैं बस है ना. ये जब हम लोग को ये वेवलेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम लोग को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा Rydberg कांस्टेंट का. तो ये वैल्यू भी हम लोग याद रख ही लेते हैं. 1/RH is 9.12 into 10⁻⁻8 मीटर है, which is 912 एंगस्ट्रॉम में है ना. 912 एंगस्ट्रॉम. रेसिप्रोकल ऑफ Rydberg कांस्टेंट. यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ ये तो हुआ इन जनरल एटॉमिक स्पेक्ट्रम. एज पर चैप्टर इज कंसर्न, इट इज मोर रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना. सो एज पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज कंसर्न,
hydrogen spectrum. In hydrogen spectrum, you can say 1 upon wavelength is RH times of 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. यहाँ जो Z का वैल्यू था वो 1 था. It is hydrogen spectrum में we have how many spectral lines? कितने spectral lines हो सकते हैं यहाँ? Infinity. Yes, there may be infinite spectral line depending Infinite. इलेक्ट्रॉन को मैंने कौन से एक्साइटेड स्टेट तक जंप करा दिया था, है ना. So ये जो बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, so you can say these spectral lines can be divided into following series. Let's say first one is Lyman series. Now the meaning of Lyman series is अगर यहाँ n1 का वैल्यू 1 है and n2 may be 2, 3, 4 and so on. Means from any higher orbit, if electron directly jump to first orbit. From any higher orbit, if electron directly jump up to first orbit, corresponding spectral line is the part of Lyman series. Same. Let's say Balmer series. यहाँ n1 का वैल्यू let's say 2 है. तो वो बालमन है, बालमर है. बाल्मर BALMER. और ये 3, 4, 5 and so on. So from any higher orbit directly to 2. Similarly, it is Paschen series. Paschen series में n1 का वैल्यू 3 and n2 can be 4, 5, 6 and so on. Next one. ये देख लेना स्पेलिंग. Let's say it is bracket series. सर वो सीरीज को वापस बताओ, मैं थोड़ा लैग हो रहा था. अरे कुछ नहीं, नाले लिखते जाओ. लाइमन सीरीज, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, है ना. यहाँ n1 का वैल्यू 4 है, n2 can be 5, 6, 7 and so on. Next one is, let's say, fund series where P is silent. यहाँ n1 का वैल्यू 5 है, n2 का वैल्यू 6, 7 and so on. अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी ये मेरा बोर्ड नीचे फिल हो गया, लिखने की जगह नहीं बची है. एज पर एनसीईआरटी इज कंसर्न, हम लोग को ये सीरीज जरूर याद रखने हैं. बाकी सब भी हैं, जैसे इसके बाद हम्फ्री सीरीज है और देयर में भी मैनी सीरीज है ना. बट ये तो याद ही रखने हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू डायरेक्टली 1, इट इज द पार्ट ऑफ लाइमन सीरीज. Any higher orbit to directly 2, it is the part of, let's say, Balmer series. Any higher orbit to 3, it is the part of Paschen series. Sir, which is fourth one? सर वो फोर्थ वाली कौन सी सीरीज है? Bracket, BRAC. अब जैसा डबल K होता है या जो भी है, मतलब लिख लोगे, टेंशन नहीं है ना. सर सिंगल के. अरे मतलब मुझे ये तो मैंने लिखा है, अब स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बाद में. हाँ सर, चेक किया. अच्छा ठीक है, अच्छी बात.
Now the point is, suppose if we have electronic transition as 5 to 3, 3 to 1, तो ये जो 5 to 3 है वो कौन सी सीरीज का पार्ट है? Passion. पाशन. वेरी गुड. और 3 to 1 Lyman. लाइमन. वेरी गुड. और सपोज अगर ये होता 5 से 4, 4 से 2 एंड 2 से 1, तो ये 5 से 4 कौन सी सीरीज का पार्ट है? ब्रैकेट वेरी गुड. 4 to 2 बाल्मर एंड 2 to 1 लाइमन लाइमन सीरीज. वेरी गुड, है ना. अभी इन सब चीजों में लोग वापस आएंगे कि क्या लाइमन सीरीज है, क्या बाल्मर, क्या वेवलेंथ, क्या फ्रीक्वेंसी के रेंज है. बट इतना लिखा है तुम लोगों ने ये. पॉइंट तक लिखा है। Okay, तो एक क्वेश्चन तुम लोग इसके बेस पे तुम मुझे करके दिखाना. क्वेश्चन इज फाइंड आउट. यार ये मेरा स्क्रीन ब्लैक किस बच्चे ने किया? ठीक करो उसको. तो मतलब कैसे आएंगे इन लोग के मतलब क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे इसी देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताता हूँ, रुको ना. सो एनीवे फाइंड आउट मिनिमम as well as maximum wavelength for Lyman series of hydrogen. You have to find out minimum as well as maximum wavelength for Lyman series of hydrogen. अच्छा ये वाला पार्ट मैं तुम लोग के लिए कर देता हूं, तो बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज तुम लोग खुद से ट्राई करना. So as per minimum as well as maximum wavelength of Lyman series is concerned, Lyman series means सर एनोटेट का ऑप्शन हटा दो. मैंने हटाया, वही हटाया है ना. So find out minimum as well as maximum wavelength for suppose Lyman series मुझे अगर find out करना था, so यहाँ ये let's say suppose nucleus है, this may be n equal to 1, this may be let's say suppose n equal to 2 and so on and so on. It is n tends to infinity, है ना. अच्छा जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप करेगा तो भी लाइमन सीरीज है, 3 से 1 पे जंप करेगा तो भी लाइमन सीरीज है, इवन इन्फिनिटी से 1 पे जंप करेगा तो भी लाइमन सीरीज है ना. फर्दर वी नो ये जो hc अपॉन लैम्डा है इट इज इक्वल टू एनर्जी गैप, है ना. ऐसा लिख सकते थे हम लोग. यस यस. अच्छा सो कैन वी से 4 लैम्डा मिनिमम, ये जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए था? मैक्सिमम. 2 और 1 मैक्सिमम एनर्जी गैप के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए यहाँ? n2 n1 इन्फिनिटी टू 1, है ना. भाई जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुड बी इन्फिनिटी टू 1. तो ये फर्दर हम लोग क्या लिख सकते थे? लैम्डा मिनिमम is Rydberg constant 1/1 square minus 1/ infinity square, which is nothing but same as RH. So यहाँ से मैं फर्दर लिख सकता था लैम्डा मिनिमम का वैल्यू is reciprocal of RH, जो हम लोग ने कैलकुलेट कहीं किया है 912 एंगस्ट्रॉम, है ना. तो ये तो है मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ. ऐसा ही मैक्सिमम वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर लो तुम लोग जल्दी से. n2 n1 2 to 1 मतलब कितना आएगा? मैक्सिमम से तो 2 to 1 ही होगा. या सर ये 1216 आएगा अप्रोक्सीमेटली. देखो जैसा अगर मुझे अगर मैं पैरेलली मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो यहाँ ये जो एनर्जी गैप होना चाहिए था इट इज मिनिमम
एंड फॉर दिस मिनिमम एनर्जी गैप यहाँ 2 to 1 होना चाहिए था ट्रांजिशन। अगर ये 2 to 1 का ट्रांजिशन है, सो 1/λ मैक्सिमम should be equal to Rydberg constant times of 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना? तो 1 minus 2 का स्क्वायर, एंड ये जो 1/λ मैक्सिमम है, इट इज नथिंग बट 3 times of RH/4, और ये जो लैम्डा मैक्सिमम हो जाता, it is 4/3 times of reciprocal of RH, comes out to be 1216, है ना? 1216 एंगस्ट्रॉम। सर एक डाउट था। आप पूछो। सर एनर्जी गैप मिनिमम हाइड्रोजन एटम का 3 से 2 में कम है। बेटा 3 से 2 में कम है, बट 3 से 2 लाइमन सीरीज का पार्ट नहीं है, है ना? ओके सर। नहीं, ये पता चला कि लाइमन का मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आएगा, 912 एंड 1216, है ना? यस सर। अच्छा, जिन बच्चों ने ये लिख लिया है, ऐसा ही बाल्मर के लिए सारी कैलकुलेशन फिर से करना है ना? सो बाल्मर सीरीज, मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम पता करना है बाल्मर सीरीज का। यस अक्षा बेटा, मैक्सिमम तो बताया, मिनिमम भी बताना है बाल्मर के लिए। मैक्सिमम तो 91। मिनिमम कैलकुलेट करना आसान है, मैक्सिमम में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना? जैसा 1/λ मिनिमम will be RH times of 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ये तो हो जाता बाल्मर सीरीज के लिए मिनिमम, और ऐसा ही बाल्मर सीरीज का अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता, तो ये आ जाता RH टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहां से मैं बाल्मर सीरीज का भी मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना? जैसा ऑब्वियसली ये वाला टर्म मेरे पास बन गया RH डिवाइडेड बाई 4, और ये टर्म मेरे पास बन गया 5RH डिवाइडेड बाई 36। Here lambda minimum, here if you have to find out lambda minimum, it is 4 times of 912 3648 angstrom, and if we have to find out lambda maximum, it is 36 divided by 5 multiplied by 912, it comes out to be 6566.4 angstrom, उस रेंज में आएगा शायद, है ना? एक बार मैक्सिमम की कैलकुलेशंस कर लेना, मुझे सही आंसर बताओ मैक्सिमम के लिए। भाई 36 डिवाइड बाई 5 इंटू 912 करना है हम लोग को, है ना?
सो ऐसा शायद हम लोग पाश्चन सीरीज के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन वी से पाश्चन के लिए मिनिमम क्या होगा भाई? पाश्चन सीरीज के लिए मिनिमम डू यू थिंक 9 से मल्टीप्लाई कर देते 912 को बस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम लोग पाश्चन ब्रैकेट सबके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है मैथमेटिकली अब तो, है ना? So how we can find out minimum? Yes, 8208 आ जाएगा मिनिमम, है ना? पाश्चन के लिए मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 912, है ना? जी सब बच्चों ने समझ लिया है बाल्मर के लिए मिनिमम मैक्सिमम? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. if you return back to let's say Lyman, Balmer, Paschen bracket, थोड़ा ये ध्यान से पहले देखो, फिर डायग्राम तुम लोग अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ भी करना। सपोज ऑन दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन, यहां मेरे पास था सपोज अल्ट्रा वायलेट, यहां सपोज मेरे पास था अल्ट्रा वायलेट, यहां मेरे पास लेट्स से विजिबल, एंड यहां सपोज मेरे पास इंफ्रारेड। नाउ एज पर लाइमन का मिनिमम इज कंसर्न, या ये रेंज कितना होता था रफली दिस रेंज इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, है ना? लाइमन के लिए जो मिनिमम है इट इज 912 और इसका जो मैक्सिमम है इट इज 1216 एंगस्ट्रॉम। सो डू यू थिंक ये जो पूरा का पूरा लाइमन सीरीज है ना, पूरा का पूरा ये जो लाइमन सीरीज है, complete Lyman series lies in ultraviolet region? ये है शायद लाइमन सीरीज मिनिमम एंड मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट रीजन में है ना? ऐसा ही एज पर विजिबल इज कंसर्न, ऐसा ही एज पर विजिबल इज कंसर्न या बाल्मर सीरीज इज कंसर्न, बाल्मर का जो मिनिमम है ना, बाल्मर का जो मिनिमम था इट इज 3648 एंगस्ट्रॉम एंड इट गो अप टू 66.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये इतना पार्ट लेट्स से बाल्मर में है ना? सो लेट्स से यू कैन से दिस इज नथिंग बट लेट्स से बाल्मर सीरीज। सो कैन वी से बाल्मर सीरीज का कुछ पार्ट तो अल्ट्रावायलेट में है एंड कुछ पार्ट विजिबल में है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. नाउ एज पर पाश्चन इज कंसर्न, पाश्चन का जो मिनिमम ही है, पाश्चन का मिनिमम इज 8208 एंगस्ट्रॉम मिनिमम। सो ऑब्वियसली दिस विल बी समवेयर पाश्चन या ब्रैकेट या फंड, है ना आगे? सो इट इज let's say Paschen series. So as per Paschen series is concerned, it is infrared, bracket is infrared, fund is infrared. तो लाइमन सीरीज पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट में है, बाल्मर सीरीज अल्ट्रावायलेट एज वेल एज विजिबल है, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड है, ब्रैकेट इंफ्रारेड है,
फंड इंफ्रारेड। अच्छा सिद्धि बेटा, ये जो गैप है, वी नो हाइड्रोजन में अपार्ट फ्रॉम, या सन में अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन वी हैव हीलियम आल्सो, है ना। सन में हाइड्रोजन के अलावा मेरे पास हीलियम भी है ना। तो बाकी जो गैप है या बाकी भी और भी एलिमेंट है ना सन में, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम नहीं है ना। तो सन से जो हम लोग को रेडिएशन आती है उसमें कुछ पार्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है ना, कुछ पार्ट हीलियम प्लस का भी होगा। सिद्धि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Now we have few more terminology behind this. We have few more terminology regarding this. जैसा, let's say, for example, if electron jump from 2 to 1 या electron jump from 3 to 1, ये कौन सी सीरीज का पार्ट है? Lyman or Bellman. Lyman. So you can say it is first Lyman series. ना, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे, ये फर्स्ट लाइमन लाइन है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मैं ऐसा भी लिख सकते थे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। 3 to 1 क्या हो जाता? Second line of Lyman. You can say second line of Lyman series. Lyman series. ऐसा ही and so on and so on. Infinity to 1 क्या हो जाता? Nine. You can say it is last line, है ना? Nine. Infinity to 1 is last line, or it is also known as series limit. Last line or series limit of Lyman series. Yes, ये लिखा है तुम लोगों ने? Yes. Minute. सपोज अगर ये 3 से 2 होता तो क्या बोलते हैं उसको इसी टर्मिनोलॉजी में? 3 से 2 First line of Bellman. First line of Balmer. Balmer. और ऐसा 5 से 3 होता तो क्या बोलते हैं उसको? Third line of. Second line of Paschen. सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। मतलब ये ऐसा आसान सी टर्मिनोलॉजी है, ऐसा याद कर लोगे, है ना। Could you suggest me major portion of Balmer series अल्ट्रावायलेट में है कि विजिबल में है? Visible. मेजर पोर्शन ऑफ लेट्स से बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज का कुछ पार्ट, अक्षा तुमने थोड़ा उल्टा याद किया है बच्चे, है ना। सो यू कैन से only first 4 lines of Balmer series, only first 4 line of Balmer series lies in visible zone. Only first 4 line of Balmer series lies in visible zone, है ना, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? फर्स्ट लाइन क्या हो जाता? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 6 से 2। बस यही विजिबल है। इसका ये जो कलर है इट इज रेड, और बाकी तीनों का जो कलर है इट इज
ब्लूइश शेड है ना। तो बस यही 4 लाइन विजिबल है एंड रिमेनिंग Balmer series Black. lies in ultraviolet. Remaining Balmer series lies in ultraviolet region. Is it clear? और इसको याद भी रखना है ना। सिर्फ फर्स्ट 4 लाइन ही बाल्मर सीरीज का पार्ट, बाल्मर सीरीज विजिबल है ना। बेटा हाइड्रोजन वाले केस में सिर्फ 3 ही जगह लाई करने वाला है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। मे बी किसी और एटम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वो एक्स रेज में चला जाए और समथिंग लाइक दिस है ना। अच्छा ये लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। विल डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। 2-3 क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं अभी। That's the first question is, if let's say wavelength of second line of Balmer series, second line of Balmer series of hydrogen is X, then find out wavelength correspond to series limit, correspond to wavelength of series limit for Lyman series of, let's say you can say lithium 2+. Obviously you have to find out your answer in terms of X. You have to find out your answer in terms of X. Yes, क्या आंसर है उसका? सिक्सटीन एक्स, 9x, 3y, 16x, ये 3 आंसर मिले, तीनों अलग अलग भाई अभी तक। हम लोग को शायद 2 इक्वेशंस लिखनी थी। एक बार वेवलेंथ मुझे हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करना है। सो हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मींस
इट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मींस 4 से लेके 2. और एक मुझे कैलकुलेट करना था लेट्स से लिथियम 2+ के लिए. लिथियम 2+ के लिए इट इज 3 का स्क्वायर से मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता RH टाइम्स ऑफ Z स्क्वायर एंड 1/1 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर. सो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. ऐसे पहले ये दो इक्वेशन तो एटलीस्ट तुम लोग लिख पाने चाहिए. Now if you divide equation 1 by equation 2, if you divide equation 1 by equation 2, it is lambda of lithium 2+ divided by lambda of hydrogen should be equal to. यहाँ एक 9 वाला फैक्टर बच जाता 3 का स्क्वायर, और वहां जो मेरे पास टर्म बचता 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. कितना बचेगा भैया? मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 3. Yes, sir. So it comes out to be 48, है ना? From here, lambda of lithium 2+. बेटा 1/48 नहीं आएगा, शायद 48 ही आएगा ना? 48. Yes. So here you can say lambda of lithium 2+ should be 48x. Lambda of lithium 2+ is 48 times of x. Is it clear? बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं कि हम लोग रेशियो ले लें सच दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट RH तो कैंसिल्ड आउट ही हो जाए, है ना? बत्सल अभी हम लोग देखा था सीरीज लिमिट का मतलब होता है इन्फिनिटी से लेके वो टर्मिनेटिंग, है ना? सो लाइमन सीरीज के लिए हो जाता है इन्फिनिटी टू 1, बाल्मर सीरीज के लिए हो जाता है इन्फिनिटी टू 2. यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने? इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. Now the next question, let's say if energy is supplied to bunch of hydrogen atoms and electron jump up to, you can say, 7th excited state. Find out maximum number of spectral lines lies in ultraviolet, visible and infrared region. सेपरेटली तुम इन तीनों का मुझे आंसर बताना है तुम लोगों को कि अल्ट्रावायलेट में कितने हैं, विजिबल में कितने हैं और इंफ्रारेड में कितने हैं. सेपरेटली तुम लोग को बताना है कि अल्ट्रावायलेट में कितने हैं, विजिबल में कितने हैं और इंफ्रारेड में कितने हैं.
अच्छा, 7th ऑर्बिट या 7th एक्साइटेड स्टेट मींस 8th ऑर्बिट। एक तो हम लोग टोटल नंबर पता कर लें पहले। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस will be 8 into 7 divided by 2। तो सब मिला के 28 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। सब मिला के 28 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, n into n-1 डिवाइड बाई 2। इन 8 में से अल्ट्रावायलेट में कितने हैं, विजिबल में कितने हैं और इंफ्रारेड में कितना है वो बताना है ना। अच्छा, लाइमन सीरीज में सब मिला के कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हैं यहाँ? भाई लाइमन हो जाता 8 to 1 एक, 7 to 1 एक, 6 to 1 एक, ऐसा ही 2 to 1 एक, है ना। सब मिला के कितने हैं ये लाइमन सीरीज में? 7। तो लाइमन सीरीज में ही ये 7 तो लाइमन सीरीज में ही हो गए, और ये सबके सब अल्ट्रावायलेट का रीजन था, है ना। अच्छा, बाल्मर सीरीज भी देख लेते हैं हम लोग। एज पर बाल्मर सीरीज इज कंसर्न, यहां भी 8 to 2 है, 7 to 2 है, 6 to 2 है, एंड देन 3 to 2 है। सब मिला के कितने हैं ये? 6। सब मिला के कितने? 6 है ना। अच्छा, इन 6 में से ये 2 अल्ट्रावायलेट में है और ये 4 विजिबल में है। अच्छा, बाकी जितने भी रेडिएशंस हैं इसके अलावा, बाकी जितने भी हैं, आइदर वो पाशन में है, आइदर वो ब्रैकेट में है या फंड में है, बाकी सब किस में प्रेजेंट है? इंफ्रारेड में, है ना। सो हियर यू कैन जस्ट सी कि भाई एज पर अल्ट्रावायलेट इज कंसर्न, अल्ट्रावायलेट में 7 + 2 9 है, विजिबल में 4 है, और इंफ्रारेड में 28 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15 आ जाएगा, है ना। सो इंफ्रारेड में सब मिला के 15 है। अच्छा, टोटल 28 था, है ना। अरे वरुण रुको भाई, थोड़ा कंट्रोल रखो। ये लो, yes, have you note down this? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन का मीनिंग समझा है? यस सर। यस देखो, किसी एक बच्चे का कुछ तो कहानी डाउट आया है अभी। ये क्या पूछा इस बच्चे ने? n = 7। वत्सल पिटाई होगी ना। लाइक 7th एक्साइटेड स्टेट है, 7th एक्साइटेड स्टेट मींस 8th ऑर्बिट। वत्सल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन में 7th एक्साइटेड स्टेट लिखा था, है ना।